Welcome young learners to this part of our microeconomics. This is the second video of microeconomics whereby we will be learning the difference between micro and macroeconomics and the central problems of an economy. Basically, we have done in our previous video that what is the meaning of economics. Let's have a quick recall so as to do the difference between micro and macroeconomics and the type of economies along with the central problems. The meaning of economics, as we have done in our previous video, is the economics is a subject matter. Economics एक ऐसा subject जिसमें that studies the different economic activities. हमने discuss किया था. Economic activities are categorized as consumption, production, saving, investment, etc. as directed towards maximizing satisfaction of each section of society. यानी कि वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करती है इकोनॉमिक्स जो कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि each section of the society could be categorized as consumers or households, and consumers want to attain the satisfaction in the form of whatever they have spent that should yield them maximum satisfaction. यानी कि जितना खर्चा उन्होंने किया है, जितना इनकम का पार्ट उन्होंने खर्च किया है, उससे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. The consumer wants to attain maximum satisfaction out of the income spent by him. If we talk about the producer as a section of the society, the producer wants to attain the maximum output at minimum cost. वो अपने resources को कुछ इस तरीके से utilize करना चाहता है ताकि उसको maximum output मिले और उसकी cost कम से कम. And if we talk about the government as a section of the society, the government wants to attain the objective of social welfare with the given resources. So this is what the economics is. Economics के बारे में हम लोगों ने अपने previous video में किया था. अब हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. द माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी स्टार्टेड बाय यू इन योर क्लास 11 while the मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी स्टार्टेड बाय यू इन क्लास 12. बट बेसिकली देयर बिकम्स डिफरेंस. कई बार आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Before we will start with this, let us discuss on two things. One, whenever you will be discussing the difference, जब भी आप क्वेश्चन में डिफरेंस, जब भी आप पेपर में अटेम्प्ट करते समय डिफरेंस लिख रहे हैं, try to write down the difference along with the basis of difference. Basis of difference, that is कि किन किन बेसिस पर आपने डिफरेंसेस को निकाला है ताकि it gives an impact on the mind of the examiner that yes, the child knows about the concept. चाइल्ड को कॉन्सेप्ट के बारे में पता है. इसीलिए स्टूडेंट्स इट्स अ टिप फॉर यू दैट व्हेनेवर यू विल बी डूइंग द difference between two variables or two concepts, and please write down it in the with the basis of difference. The another thing that we need to discuss before starting with this is what is the meaning of equilibrium, ताकि जब हम आगे इसको करें तब आपको पता हो कि हम equilibrium किसे कह रहे हैं. The equilibrium is a state of balance. Equilibrium का मतलब basically होता है state of balance, state of rest. That means basically it is the state of satisfaction. Basically ये state होती है satisfaction की. जो भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं या जो भी इकोनॉमी की यूनिट्स हैं. Now we will be starting with the difference between microeconomics and macroeconomics. So students, microeconomics origin का मतलब है कि कहाँ से originate हुआ. The microeconomics has originated from Greek word micros, which means small, जिसका मतलब है स्मॉल. यानी कि ग्रीक वर्ड माइक्रोस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है छोटा, स्मॉल. दैट मीन्स कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी यूनिट्स को, स्मॉलर यूनिट्स को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस. मैक्रोस का मतलब है लार्ज. दैट मीन्स हियर वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल. यहाँ पर हम लार्जर यूनिट्स को स्टडी करते हैं. देन यूनिट ऑफ स्टडी, यहाँ बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट.
हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली जिन यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं वो है कंज्यूमर या हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर या मार्केट। ये ध्यान रखिएगा, इधर कंज्यूमर्स बिहेवियर स्टडी, या तो कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया जाता है या प्रोड्यूसर का बिहेवियर, और या फिर मार्केट में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। जबकि इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स वी बेसिकली स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो यहाँ जो हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की, हियर वी टॉक अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देयर आर बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो इकोनॉमी एज अ होल में हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, और ये सेक्टर्स हैं कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी को छोड़कर बाकी जो इकोनॉमीज हैं, द सम टोटल ऑफ दैट विल बी टर्म्ड एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हियर वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, वेयर बाय देयर आर द कंज्यूमर्स, देयर आर द प्रोड्यूसर्स, यानी कि हम कंज्यूमर्स की भी स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर्स की भी करते हैं, गवर्नमेंट का की स्टडी करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ही देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते समय बेसिकली किन चीज़ों को देखते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि यदि हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, अब इसी से लिंक करते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर विद एन इंक्रीज और विद अ फॉल इन द प्राइस। सिमिलरली व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, सप्लाई की बात करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। सो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर विद एन इंक्रीज इन द प्राइसेस और फॉल इन द प्राइसेस। मार्केट में किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, अगेन दैट विल बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो कंज्यूमर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड मार्केट प्राइसेस, मार्केट में किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, दैट इज डन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। देन वी हैव इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसा नाम से पता चल रहा है कि एग्रीगेट का मीनिंग होता है सम टोटल। सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी मेड बाय ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। अभी हमने किया, हमारे पास 4 इकोनॉमिक सेक्टर्स है, तो इन सब की जो डिमांड है उसका सम टोटल। सो व्हाट विल बी द सम टोटल ऑफ द डिमांड, लेट अस हैव अ लुक कि कौन कौन सी डिमांड इकोनॉमी में होती है। यदि कंज्यूमर की बात करें, द कंज्यूमर डज दी कंजम्पशन, कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन करता है। द प्रोड्यूसर डज दी इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है। द गवर्नमेंट डज दी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज दी कंजम्पशन, सो इट इज इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, द डिमांड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिमांड किस फॉर्म में होगी, जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स हैं उनकी जब डिमांड बाहर होगी, दैट विल बी द एक्सपोर्ट्स। हम जब किसी कंट्री की फूड्स को मंगा रहे हैं फॉर द कंजम्पशन, दैट विल बी द इम्पोर्ट्स। तो नेट बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का जो नेट बैलेंस होगा वो हमारा किसका पार्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड। सो द एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल दिस। जो एग्रीगेट डिमांड जिसे हम एडी से भी डिनोट करते हैं वो है इसका सम टोटल। द एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। फिर आपके पास आता है फोकस ऑफ स्टडी, यानी कि हम इसके अंदर बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किस पर स्ट्रेस देती है, दिस इज प्राइस डिटर्मिनेशन। इट गिव्स the stress on price
डिटर्मिनेशन, यानी कि किस तरीके से किसी भी मार्केट में प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है. We'll be doing the several types of market. So how the prices are determined in the market? How does the producer takes a decision of setting the prices of the commodity? That will be done in the microeconomics. जबकि macroeconomics में we study the level of output, employment. हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि आउटपुट का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है और इनकम का लेवल क्या है. तो इट स्टडीज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज अ होल. फिर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ बैलेंस. तो इकोनॉमी, यदि हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हम किस के इक्विलिब्रियम को देखते हैं. हम देखते हैं बेसिकली इन तीनों के इक्विलिब्रियम. कहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, कहाँ पर प्रोड्यूसर का और कहाँ मार्केट का इक्विलिब्रियम है. सो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वी स्टडी, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हम स्टडी करते हैं और हम स्टडी करते हैं मार्केट का इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कंज्यूमर कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा. The consumer is satisfied where the last unit of money spent by him is equal to his satisfaction. यानी कि जो उसने पैसे खर्च किए हैं उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ कंज्यूमर. प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसे मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. फिर हमारे पास आता है मार्केट का इक्विलिब्रियम. मार्केट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. मार्केट तब इक्विलिब्रियम में आता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं. जबकि हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम और लेवल ऑफ आउटपुट. हियर वी स्टडी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. एक इकोनॉमी में when we talk about the equilibrium level, all three are equal: output, income and employment. There's no difference between the output, income and employment. It seems कि जितना इकोनॉमी में आउटपुट होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा and that will be turned into the factor income. Then the alternative names are here कि हमारे पास इनके alternative names क्या हैं. Basically जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज नोन एज प्राइस थ्योरी. हम इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो प्राइस डिटर्मिनेशन की करते हैं. तो बेसिकली द प्राइस डिटर्मिनेशन इज स्टार्टेड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं जबकि यहाँ हम इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं. दैट इज व्हाई द ऑल्टरनेटिव नेम इज इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखें कि हमारे पास जो बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ओरिजिन. It has been originated from micros, it has been originated from macros. Micros means small, that means here we study the smaller units of the economy and here we study the economy as a whole. यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं जबकि हम इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं. जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं इट स्टडीज ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच कंप्राइजेस ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिमांड एंड सप्लाई. कंज्यूमर डज द डिमांड इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर डज द सप्लाई एंड मार्केट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. The aggregate demand and the aggregate supply. Aggregate demand is the sum total of consumption, investment, the consumption and investment done by the government, and the exports and imports. The focus of study is the price determination. Here we study how the prices are determined for a commodity in the market, and here we study the level of output, employment, and income. The equilibrium हम यहाँ पढ़ते हैं तीन equilibriums को: consumer का equilibrium, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम और मार्केट का इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेयर द कंज्यूमर्स इनकम गिव्स हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. द ईच यूनिट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम गिव्स हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट and the market gets the equilibrium where the demand is equal to supply. Here we does the equilibrium level of output, income and employment whereby all three are equal. The alternative names are price theory,
and here it is having the income employment theory. So far we have done the meaning of economics. Now we will be moving towards the meaning of economy, what an economy is and what are the types of the economy. The economy is the sum total of all economic activities, यानी कि जितनी भी economic activities हैं, a system whereby all these economic activities are done. We have done there are consumption, production, distribution, savings, investment. तो जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी. And economy is a system that provides people with the means of work and earn living. यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका को अर्न करते हैं. That means they earn for their lives. That is the economy. So economy is a system whereby the people do the work, do the economic activities so as to earn the living. So there are basically three types of economy. Economy के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं. दीज थ्री टाइप्स आर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट इकोनॉमी. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट इकोनॉमी? The market economy is an economy. If you see, I have written down the different characteristics. We will be discussing all these characteristics one by one. The private ownership of factors of production. हमने अपने previous video में किया था. There are basically 4 factors of production. हमारे पास 4 factors of production होते हैं: land, labor, capital and entrepreneur. So it is a kind of economy whereby these factors of production are owned by the private sector and the government's role is confined only up to maintenance of law and order. यानी कि जितना भी प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है, जबकि गवर्नमेंट का जो रोल है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने तक ही सीमित है. तो the next characteristic is the freedom to choose. Freedom to choose what? यानी कि क्या चूज करने का फ्रीडम है? The freedom to choose is what to produce, how much to produce, how to produce, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. The whole decision is taken by the private sector. The government does not intervene. गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करती. The decision maker is the private sector as to what it has to produce, how it has to produce, for whom it has to produce. And the market economy is an economy which is driven with the profit motive. एक ऐसी इकोनॉमी जो कि totally profit motive पर based है. That means an economy which wants to earn the maximum profit. The producer, the private sector wants to earn the maximum profit. प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स द प्रोडक्शन डिसीजन. अभी हमने बात किया कि फ्रीडम टू चूज, कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस. The producers are free to choose as to what to produce. Now, how do they take the decision? How do they take the production decision? Production decision किस तरीके से लेते हैं? The price mechanism guides, यानी कि जिस चीज़ की prices सबसे ज़्यादा होंगी, the producers will be oriented towards the production of that commodity only, since it will yield them profits. Profit motive से चलने वाली इकोनॉमी है, इसीलिए प्रोड्यूसर उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे जो कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट देगी. दैट मीन्स द प्राइसेस आर हाई. दैट इज व्हाई इट इज देयर दैट द प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स द प्रोडक्शन डिसीजन. इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म, दैट मीन्स हायर वुड बी द प्राइसेस, मोर द प्रोड्यूसर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कमोडिटी सो एज टू अर्न द प्रॉफिट्स. देन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. इस तरीके की मार्केट में आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा. क्यों? क्योंकि द प्रोड्यूसर्स वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट. क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है. देयर इज कट थ्रू कॉम्पिटिशन इन सच काइंड ऑफ मार्केट एंड हेंस द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. और इसका टोटल आउटकम क्या है कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का किंग है. क्यों? क्योंकि एक ऐसा मार्केट जिसमें कॉम्पिटिशन है, whatever is demanded by the consumer, that will be fulfilled by the producer so as to remain in the market for a longer period of time. यदि
प्रोड्यूसर को मार्केट के अंदर टिकना है, यदि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन करना है, द प्रोड्यूसर हैज़ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज वॉट एवर इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर हैज़ टू बी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर, एंड हेंस इन सच अ वे द कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर, द कंज्यूमर बिकम्स द किंग ऑफ द मार्केट, दैट इज whatever is demanded by the consumer has to be fulfilled by the producer so as to remain in the market for a longer period of time. तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चलती है, एंड द गवर्नमेंट हैज इट्स रोल ओनली अप टू द लॉ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, centrally planned economy is the second type. The centrally planned economy is a kind of economy whereby there is public ownership of factors of production. यानी कि public ownership का मतलब है जहाँ पर factors of production are owned by the government. एक ऐसी economy जहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है, नो फ्रीडम टू चूज, यानी कि फ्रीडम नहीं है चूज करने का, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है. द डिसीजन मेकर इज द गवर्नमेंट एंड द मोटिव इज द सोशल वेलफेयर. इसका जो मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर. दैट मीन्स इट इज एन इकोनॉमी वेयर बाय द गवर्नमेंट फोकसेस towards the maximization of social welfare being the social agency. क्योंकि गवर्नमेंट जो है सोशल एजेंसी है, इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो. द प्लानिंग एट सेंट्रल लेवल गाइड्स द प्रोडक्शन डिसीजन. हमने देखा था यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिसीजन हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में, वो पूरी तरह से इस चीज़ पर डिपेंडेंट था कि किसकी प्राइसेस ज़्यादा है, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में द प्राइस डज नॉट प्ले एनी रोल. हियर द प्लानिंग एट सेंट्रल लेवल, बेसिकली बजट के थ्रू ये डिसाइड होता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किस ईयर में होगा, वेयर द रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड सो एज टू डू द प्रोडक्शन. सो वॉट एवर द डिसीजन इज टेकन इज एट द सेंट्रल लेवल, दैट मीन्स एट द गवर्नमेंट लेवल थ्रू इट्स बजट, वेयर द रिसोर्स एलोकेशन हैज़ टू बी डन. कहाँ पर रिसोर्सेज को लगाया जाए, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए. इस तरीके के मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है. और एक ऐसा मार्केट जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं, कंज्यूमर लूजेस इट्स सोवरेनिटी. कंज्यूमर की सोवरेनिटी नहीं होती. वॉट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज वॉट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर. उसे कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज द कंज्यूमर डज नॉट हैव एनी चॉइस. क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोडक्शन के कारण कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, एंड वॉट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द government has to be accepted by the consumer. Now the third type is the mixed economy, which is an essential characteristic of our Indian economy. जो हमारी Indian economy का essential characteristic है. Mixed economy एक ऐसी economy जहाँ पर आपको दोनों तरीके की ownership मिलेगी, private as well as public ownership of resource factors of production. That means कि ये वो इकोनॉमी है जहाँ पर factors of production are owned by the private sector. That means the production, there is the involvement in the production of the private sector as well as of the government sector. कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन, कुछ कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और कुछ का गवर्नमेंट कर रहा है. That means it is an economy whereby there is an involvement in the production activity of both the sectors, that is the private sector as well as the public sector. Then freedom to choose है या नहीं? The freedom to choose is only confined for the private sector. So private sectors enjoy the freedom to choose, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसका जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स ले सकते हैं. सो प्राइवेट सेक्टर्स एंजॉय द फ्रीडम हियर while the government sector takes its own decision. Then we have the motive. What kind of motive is there in such kind of economy? It is an economy which is driven with both the motive, profit as well as social welfare. The social welfare is done by the
government, while the profit motive is attained by the private sector. So जब हम private sector की बात करेंगे तो वो profit motive को attain करना चाहते हैं. When we talk about the government, it wants to attain the social welfare. So it is an economy which is driven with both the motives, that is profit maximization as well as social welfare maximization. Here the price mechanism guides the production decision of the private sector, and the central government or the planning at the central level guides the production decision for the government. So that means price mechanism for private sector and planning for government. क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. कंपटीशन की बात करें, द कंपटीशन एग्जिस्ट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर. सो कंपटीशन एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर. केवल प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज द डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट बीइंग द सेंट्रल एजेंसी और द सोशल वेलफेयर एजेंसी. Absence of consumer sovereignty is there in the government sector, while the consumer is the king of the market in the private sector. So here the consumer has to adopt certain commodity. So in the mixed economy, the production, the consumer is the king of the market, whereby he is purchasing the commodity from the private sector. But when he has to accept the product that has been produced by the government sector, in that case it does not enjoy that much freedom. उतनी freedom consumer को नहीं होती. So the market economy is a kind of economy which is basically owned, whereby the resources are owned by the private sector, and the consumer is the king of the market. Such kind of economy is driven with the profit motive. The centrally planned economy is a kind of economy whereby the government is the being the social agency, wants to maximize the social welfare, and all the resources are owned by the government. The allocation of resources are done in such a way so that the social welfare would be maximized. And the mixed economy is a kind of economy whereby there is the existence of both kinds of market, that is both kind of economies, that is market economy as well as the centrally planned economy, and hence it has the characteristics, mixed characteristics of both the economies. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we will be doing the central problems of an economy. First we will be discussing what do we understand by the central problems of an economy. See, there could be different types of problems in different kinds of economy, but the central problems of an economy are the common problems of each economy, चाहे वो कितनी ही developed economy हो, चाहे कितनी ही underdeveloped economy हो, each economy faces these central problems. So first we will be doing what are the reasons behind these central problems of an economy. There are basically three reasons behind the central problems of an economy. These reasons are limited resources, which we also term as scarcity of resources. That means each economy, whether it is underdeveloped, developing or the developed economy, each economy has limited resources. हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है, here if we talk about the resources again will be land, labor, capital and entropy. So these resources are limited with the economies. किसी इकोनॉमी के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, किसी के पास लेबर बहुत ज़्यादा है. That means there is not the equal distribution of the resources amongst the economy. So the resources are limited. If there would have been unlimited resources, यदि resources unlimited होते तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी वेयर इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर whereby we study how does the economic variable manage the resources, किस तरीके से वो अपने resources को manage करते हैं. So there are the limited resources because of which the central problem arises. Then the second thing is there are alternative uses of resources, यानी कि जो resources हैं उनके uses alternative है. Alternative का मतलब है there are more than one use of that resource. Supposingly I take the example of land. The land could be utilized towards the agriculture. उस land पर agriculture किया जा सकता है.
A land could be utilized to set up an industry. अब एग्रीकल्चर की बात करें, उस लैंड पे वीट भी उगाया जा सकता है, सपोजिंगली उस लैंड पे वेजिटेबल्स भी उगाई जा सकती हैं. सो देयर आर limited resources but alternative use of the resources. So that gives the problem of choice. इससे जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि क्या प्रोड्यूस किया जाए. सो दिस बिकम्स अ सेंट्रल प्रॉब्लम ड्यू टू द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज. देन वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस. ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, एंडलेस है. और बिकॉज ऑफ दीज एंडलेस वांट्स द प्रोडक्शन डिसीजन हैज टू बी टेकन वेरी रैशनली. और इसीलिए इन एंडलेस वांट्स की वजह से देयर शुड बी द रैशनल डिसीजन ऑफ द प्रोडक्शन सो दैट द ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड बी सेटिस्फाइड, ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सेटिस्फाई किया जा सके. सो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन दीज थ्री रीजंस. वन, द रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिन्हें इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि हर सेक्शन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द रिसोर्सेज कुड बी पुट इन मोर देन वन यूज, एज वी हैव टेकन द एग्जांपल. एंड द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एंड क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, वो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में वो ये चाहता है कि वो अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई करे. तो इस तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स में ये पढ़ते हैं हाउ द रिसोर्सेज आर मैनेज, किस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है. सो देन वी विल बी डूइंग व्हाट काइंड ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर देयर, कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और हम उसको किस तरीके से देखते हैं. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So basically the central problems of an economy has three reasons. These are limited resources, unlimited wants and alternative uses of resources. Now the first problem, central problem rather, that is faced by an economy is what to produce and how much to produce. क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए. इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को ये देखना होता है कि विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनसे किन कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जा सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस. सो दिस प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ, दिस प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. यानी कि किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए. ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपके पास. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क. द प्रॉब्लम, द सेंट्रल प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज व्हाट टू प्रोड्यूस. तो कौन सी प्रॉब्लम होगी वो, व्हाट टू प्रोड्यूस. द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, यानी कि कौन कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज. बेसिकली an economy can produce the consumer goods. इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है कंज्यूमर गुड्स को विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज. इट कैन प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. कंज्यूमर गुड्स कुड बी कैटेगराइज्ड एज ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. सो अभी हम आते हैं इन पे. कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स या डिफेंस गुड्स. Defense goods are the arms, weapons, etc. So the choice of goods could be categorized as consumer goods, producer goods and defense goods. Consumer goods could be categorized as durable. Durable वो goods होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं. For an example, car, electronic items, etc. The semi-durable goods are the goods which can be consumed for a comparative lesser period of time. For example, clothes, shoes, etc. And non-durable goods are those goods which are finished or consumed in single act of consumption. For example, milk एक बार consume कर लिया, अब आप उसी milk को दोबारा consume नहीं कर सकते. Single act of consumption में खत्म हो जाने वाले goods को हम क्या कहते हैं, non-durable goods कहते हैं. So the consumer goods, choice of goods to be produced. अब उसमें से भी ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए. इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूसर गुड्स में लॉन्ग टर्म प्रोड्यूसर गुड्स हों या शॉर्ट टर्म प्रोड्यूसर गुड्स हों.
defense goods, arms, weapons, etc. So the economy with the given set of resources has to decide that what goods have to be produced. अब जब इकोनॉमी ने एक बार डिसाइड कर लिया कि किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, देन द प्रॉब्लम अराइजेस हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और उनमें से भी कितने ड्यूरेबल, कितने सेमी ड्यूरेबल, कितने नॉन ड्यूरेबल, कितने प्रोड्यूसर गुड्स, कितने डिफेंस गुड्स. सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन. इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है प्रोपोर्शन कंज्यूमर गुड्स का, प्रोड्यूसर गुड्स का एंड डिफेंस गुड्स का, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड. सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज एज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए पहले तो, और फिर कितना प्रोड्यूस किया जाए विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज. सो द चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, the choice of goods to be produced is the problem associated with what to produce. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. The second central problem of an economy is how to produce. किस तरीके से produce किया जाए. This is the problem that is related to the problem of choice of technique. So again यहाँ से ये 1 mark question है आपके पास, the choice of technique of production. So a problem that is related to the choice of technique of production, एक ऐसी problem जो choice of technique of production से related है, 1 mark question, is the problem how to produce. So how to produce में हम देखते हैं कि किन टेक्निक्स का यूटिलाइज किया जाए, कौन सी टेक्निक को यूज किया जाए so as to do the production. Basically the techniques of production has been categorized. The technique of production has been categorized into 2 parts. One is labor intensive technique. Second is the capital intensive technique. So there are 2 kinds of techniques, that is labor intensive technique and the capital intensive technique. Labor intensive technique is a technique whereby there is more use of labor and less of machines, जहाँ पर लेबर का यूज ज़्यादा होता है और मशीनों का यूज कम होता है. फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हियर, क्योंकि हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेसर यूज ऑफ मशीन्स. वेयर ऑन द अदर हैंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज a technique where there is more use of machines and less use of labor. So the economy has to decide that which technique of production it has to adopt. अब इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया जाए so that the production could be maximized. One, all the resources could be employed. The second target it has to achieve. So the economy with the given technology has to decide whether it will be utilizing more of labor intensive technique or the capital intensive techniques, depending upon the nature of the techniques available in the economy or the resources available in the economy. So this is the problem of how to produce. This is associated with the problem of choice of technique. The choice of technique से related है, the economy has to decide as to which technique has to be taken into the consideration while doing the production activity, whether it is labor intensive or the capital intensive technique. आप इसका एक शॉर्ट ले सकते हैं. The third central problem is the for whom to produce. This is the problem that is related to the distribution of income. So the problem that is related to, again 1 mark question from here, 1 mark question here. This is the problem which is related to distribution of income. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम
is the problem of for whom to produce. Basically हम इकोनॉमी में दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं. There are two kinds of distribution. One is personal distribution and the second one is the functional distribution. Under personal distribution, the goods and services are distributed to the individuals and households on the basis of their purchasing power. यानी कि जिसके पास खरीदने की पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, बिकॉज द कंज्यूमर इज एबल टू पे फॉर द कमोडिटी ही इज डिमांडिंग. सो दिस personal distribution is related to the distribution of goods and services to the individuals or households depending upon their purchasing power. The more will be the purchasing power, the more they will be in the condition to buy. That means such kind of distribution somehow indicates towards the unequal distribution. कहीं ना कहीं ये unequal distribution को indicate करता है, because those who will be having the more purchasing power, they will be able to buy, but those who cannot, those who do not have the affordability, they will not be able to buy the commodity. So personal distribution somehow indicates towards the unequal distribution. Then we have the functional distribution. The functional distribution is the distribution on the basis of कंट्रीब्यूशन. आपको याद होगा हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन इम्प्लाइज दैट द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the factors of production on the basis of the contribution made by them in the process of production. यानी कि जितना जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पर उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. दैट मीन्स इट सजेस्ट लेसर अनइक्वालिटी ऑफ इनकम. हाउ डू वी डू सो? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव डन. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड कंट्रीब्यूट. लैंड के लिए उनकी सर्विसेज को दिया जाता है रेंट, लेबर को उनकी सर्विसेज के लिए दिया जाता है वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूटर गेट्स प्रॉफिट फॉर द risk undertaken by him for assembling the resources for the production. So the functional distribution, function, whatever the function has been done by the factors of production, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेसिस पर जब उन्हें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, दैट इज नोन एज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाइल द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर. सो एक बार क्विक रिकॉल ले लेते हैं तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का. द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम वाज, तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास थी द सेंट्रल प्रॉब्लम. The first central problem is what to produce and how to produce. What to produce is related to the choice of goods, and the goods could be of 3 types: consumer, producer and defense goods. And यहाँ पर what to produce and how much to produce. How much to produce and how much to produce is related to the proportion of consumer, producer and defense items. And the second is how to produce. How to produce is related with the choice of technique, and the techniques could be of 2 types. These are labor intensive and capital intensive. लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज, मशीनों का कम. कैपिटल इंटेंसिव जिसमें
मशीनों का ज़्यादा यूज़, कैपिटल लेबर का यूज़ कम। Personal distribution and the functional distribution is the problems of for whom to produce. For whom to produce में हम देखते हैं कि इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. There are two ways of that: personal distribution and functional distribution. Under personal distribution, the goods and services are distributed as such based on the purchasing power. More will be the purchasing power, more will be the distribution to that particular household or the consumer. That is why it is known as personal distribution. Functional distribution is based on the distribution on the basis of the contribution in the process of production. That means जिस फैक्टर ने जितना contribute किया है production process में, उसका उतना ही remuneration. The remuneration gained by land is rent. Labor gets the wages, capital gets the interest, and entrepreneur gets the profit. आप इसका एक screenshot ले सकते हैं. So the students, we have done today the central problems of an economy, जहाँ से आपको 3 marks का एक question मिलता है. Either you get explain what to produce or how to produce or for whom to produce. So you will be getting one question of 3 marks from this. Hope so that you must have understood all these 3 central problems. So children, have a good day. फिर मिलेंगे next video में.